हेलो एंड वेलकम टू अभिपेडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ द एक्सपेक्टेड डेट फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जाम। एज सच एवरी एग्जामिनेशन इज बीइंग डिफर्ड बट वी नीड टू नो कि एग्जैक्टली क्या इस बार NABARD ग्रेड ए का सिस्टम क्या रहने वाला है। दैट इज समथिंग एवरी एस्पिरेंट वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द प्रोसेस दैट कैन बी टेकन अप बाय द NABARD for this particular examination. So for that what we need to do is we need to learn about the timeline for this examination. This examination is conducted every year. So I've just taken out a few years for you guys ताकि हमें समझ में आ सके कि किस समय इनकी normal notification निकलती आई है. So when we talk about the notifications, I've taken up from the last 5 years. 2017 की जब हम बात करते हैं तब इनका जून के अंदर ये particular exam का डेट निकला था. जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुई थी वो जून में शुरू हुई थी. उसके बाद इन्होंने मार्च में कर लिया था 2018 के अंदर. मई में लेकर गए हैं in 2019 while in terms of January 2020. So if we look at the pattern that they were having, so ये lower end of the year पर जा रहे थे 2017 and 2019 के अंदर. In the upper end, that is in the upper area, आपके जो first quarters और second quarter के अंदर ही उन्होंने करवाया था in 2018 and 2020. So it was expected कि इस साल क्या होगा, it is going to come within this particular bracket only. So let's see, as soon as possible the notification comes out. It is expected as soon as the pandemic goes down, all the examinations will be resumed to their normal timing. So we are going to have the notification regarding NABARD grade A, because NABARD grade A is definitely conducted every year. हर साल इसकी notification निकलती ही है. So it is expected as soon as the pandemic goes down, they are also going to go for it. So we can expect कि अभी मई के अंदर या जून के अंदर इनकी notification निकल आएगी. So the point that comes around is, shall we start preparing for NABARD grade A at this point of time या अभी छोड़ दें? So for that particular thing I've got a little strata for you guys to understand कि क्या हमको प्रिपेयर करना भी शुरू भी करना चाहिए या नहीं. बिकॉज सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, जो दिमाग में हिट करता है कि प्रिपेयर करना शुरू करूँ अभी या shall I defer my preparation as well. So let's talk about it. So when we look at this particular area, this is what to do now. अब क्या करें? अब जब हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो कई चीज़ें आज मैं एक डेटा के थ्रू आपको बताने वाली हूँ दैट कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर डिसीजन. बट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रीलिम्स के अंदर क्या है. इसके सबसे पहले मैं आज प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. इसके फेज 1 के अंदर यू विल हैव अराउंड 7 सब्जेक्ट्स. उन 7 सब्जेक्ट्स का क्या बेसिस है? इन दीज 7 सब्जेक्ट्स यू विल फाइंड क्वांट, you will find reasoning, you will find English, computers, general awareness, then economic and social issues, and ARD, that is agriculture and rural development. While the marks allotted to each of them is quant का आपका 20 marks का है. ध्यान से देखिएगा, reasoning आपका 20 का है और आपका जनरल अवेयरनेस भी 20 का है एंड कंप्यूटर नॉलेज भी 20 का है. सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? लुक एट द वेटेज ऑफ इंग्लिश, ESI एंड ARD. क्या अगर हम इन पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट्स को देखते हैं, these particular subjects are carrying 120 marks out of total 200. A great weightage is definitely given to these 3 subjects. And at the same time, you're not only preparing for the prelims. If you are literally looking forward to this examination, these three subjects are definitely going forward towards your mains as well. मतलब जो 3 अगर आपने इनका अपना फोटे बना लिया तो ये आपके सिर्फ prelims में help नहीं कर रहे. This is going to help you further in the mains of NABARD grade A. So वहां पर भी ये हेल्पफुल हो जाएगा. बट देन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर प्रीवियसली आस्क्ड इवन. सो दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. देयर वर स्टूडेंट्स हु वाज आस्किंग कि मैम सेक्शनल कट ऑफ भी तो है, अगर हम इन्हीं पर प्रिपेयर करते रह गए तो हमारा सेक्शनल कट ऑफ का क्या होगा? सी, focusing on these 3 papers definitely is going to help you to reach the merit list, but obviously we have to work upon the other subjects as well. ऐसा नहीं कर सकते कि हम वो बिल्कुल छोड़ दें. So for that particular thing, let's understand the portion of cut off of this examination. So ये आपके पास वो 7 सब्जेक्ट्स जो आपको फेज 1 के अंदर मिलेंगे. अभी पिछले कुछ समय में जो इनके पैटर्न चल रहे हैं, when we talk about the regulatory bodies, RBI, SEBI, as soon as they gave out the notifications, they were conducting the examination as early as possible. So I think at this point of time it is very dangerous to leave the point कि चलो जब notification आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर आप वो cutting edge नहीं बना पाओगे अपने लेवल पर, क्योंकि वो तसल्ली से पढ़ने वाला जो टाइम है, स्ट्रैटेजी बनाने वाला जो समय है, वो आपके पास बहुत कम होगा. बिकॉज बाकी सब एग्जामिनेशंस जो हर कोई स्टूडेंट इस वक्त दे भी रहा होगा,
उन सब में लग जाओगे तो आप पर पेपर वो जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है ना, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. सो चलो देखते हैं व्हाट कैन वी डू अबाउट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. We are conducting a particular combined scholarship test for the students because there are so many students who are still preparing and they have decided that before the examination notification comes, we want to work upon ourselves. So what you can do is you can grab your chance to participate in the combined scholarship test. In this combined scholarship test, we are giving up to 90% discount. You can avail 90% discount on any of these courses, be it SEBI grade A, be it RBI grade B or NABARD grade A. The point which every student is being hit by is कि मैम इस साल पेपर्स होंगे भी या नहीं होंगे. We need to remember SEBI and NABARD इन दोनों के केसेस में be it RBI, ये तीनों के तीनों कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जो हर ईयर कंडक्ट किए जाते हैं. The vacancies are taken out every year. During the pandemic situation, maybe it is being deferred, but definitely if we look forward to the pattern, the examination should be conducted in this year as well. So अगर वो अपने इस बार कंडक्ट करेंगे और हम अभी सिर्फ डेफर कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को फॉर द सेक ऑफ द नोटिफिकेशन, that can be a trouble because अगर तीनों के आसपास ही आ गए तो वो जो पेपर स्पेसिफिक प्रिपरेशन है वो मिस आउट हो जाएगी. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट देके देखिए. इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट यू विल हैव टू इन्वेस्ट बेयरली एन आवर, 1 घंटा, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास इंग्लिश है. ओके इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आपके पास रहेगी इंग्लिश. हम हर एग्जाम के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी हैव क्वांट एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव रीजनिंग. अगर आपके पास यही 3 सब्जेक्ट्स, इसमें सिर्फ ये 3 के ऊपर टाइम देना है, वो भी सिर्फ 1 घंटा. उस 1 घंटे के अंदर आपका इंग्लिश 30 मार्क्स का है, क्वांट आपका 35 का है और रीजनिंग भी आपका 35 का है. और अगर आप हमारे टॉप 10 में आ जाते तो यू कैन गेट अप टू 90% डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज. फुल कोर्स के ऊपर आपको 90% डिस्काउंट मिल जाता है. मतलब सिर्फ 1 घंटा इन्वेस्ट करके यू कैन गेट एनी ऑफ दीज कोर्सेज एंड यू कैन इन्वेस्ट द टाइम विच इज बीइंग वेस्टेड राइट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली बात है हम सब लोग पैंडेमिक के अंदर अपने घरों के अंदर है, वी आर स्टक इन द एरियाज, बट देन वी कैन इन्वेस्ट दिस टाइम इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो दैट एज सून एज the pandemic ends and we get back to our normal lives, हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में और स्ट्रेंथन कर चुके हों खुद को. So that's an initiative by us for all those students or aspirants who are preparing for any of these, be it RBI, be it SEBI or be it NABARD grade A. So if you are actually preparing for these things, best time है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का. बस 35 मिनट, 35 एंड 30 3 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, उनके पर क्वेश्चन आपकी मार्किंग स्कीम 1 की ही रहेगी. तो आपको मिलेंगे 1 घंटा to attempt this particular exam and you can grab the particular scholarship. ऐसा नहीं है कि सिर्फ top 10 के आपके पास आएगा. Other than that we have other slabs as well. Those who are scoring above 50% in the examination can grab up to 50% of the scholarship. Scoring 75% above तो आपको मिल सकता है 75% तक की scholarship. So then it is an opportunity for all those who are preparing for these. और आपको English, Quant और Reasoning तो हर examination के लिए prepare करनी ही है, तो क्यों ना अभी से ही उसकी एक थोड़ी सी मेहनत करके हम अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट तैयार कर लें. सो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट एंड इस पर्टिकुलर कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ नीचे अवेलेबल हो जाएंगी. सो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ऑन 10th of May 2021. ओके सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, इस पेपर का सेक्शनल कट ऑफ क्या गया था. So let's understand what was the cutoff for the general in terms of RDBS Assistant Manager Grade A examination of NABARD in terms of 2020. 2020 में जब ये एग्जाम हुआ था, इट वॉज कंडक्टेड ऑन 25th of February 2020. उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की जब इन्होंने प्रीलिम्स की डिटेल्स दी तो उस प्रीलिम की डिटेल्स में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था इनकी कट ऑफ पिछले साल कम गई थी. देयर वर एरियाज, देयर वर ईयर्स जब इनकी जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 200 it went up to 126, 129 तक भी गई है. बट लास्ट ईयर इन सब स्ट्रेटा से थोड़ी सी कम गई. पिछली बार जो थी वो 118.50 थी फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी. फॉर EWS it was 95.75. Then for the OBCs it was 104. Then next for the STs it was 92. Then for SCs it was 98.5. Then there were PWD category A and B, उनका था 77.75 and the last one was 51. So when we look at 2020 examination,
examination as per the cutoff list which was released by NABARD, उनकी तरफ से पिछली बार 118 मार्क्स जो थे that was their cutoff. So at least हमको ये आइडिया हो जाता है पिछले कुछ सालों का. आई विल बी ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर सेशन फॉर यू गाइस जहाँ पर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कई जो कट ऑफ हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया है और मिनिमम कट ऑफ कितना गया है आज तक. तो हमको एक आइडिया हो जाता है व्हेन आई प्रिपेयर फॉर इट एंड आई गिव द मॉक टेस्ट, मेरा स्कोर कहाँ स्टैंड करता है जब मुझे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करना है. तो दैट इज हाउ वी कैन प्रिपेयर इट स्ट्रैटेजिकली rather than just going for the examination and not even knowing what we need to do about it. So when we talk about the cutoff, ये cutoff गई थी. इसके अलावा there were students who were asking मैम sectional cutoff का क्या scope है. जब हम sectional cutoff की बात करते हैं, this was what they had released. According to them, the cutoff points used on the objective for all posts, उनके जो cutoff की जो categories हैं वो ये रही. SC, ST, OBC और PWD के केस में उन्होंने reasoning के अंदर 1 दिया था. Out of 20, 1 minimum. Then we have English 40, 40 and 40. Okay, AR 40. सिर्फ एक इंग्लिश की कट ऑफ जो थी वो थोड़ी ज़्यादा गई थी. बाकी सब में आपको जो मिनिमम कट ऑफ है दैट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली इन योर हैंड्स. सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, दिस इज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अगर आप उन 3 सब्जेक्ट्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बाकियों को बिल्कुल छोड़ना होगा, क्योंकि इस एग्जाम का ये ज़रूर बेनिफिट है कि चाहे वो रीजनिंग हो, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि मुझे रीजनिंग थोड़ी वीक लगती है या मुझे लगता है मेरा क्वांट वीक है, तो वहां पर क्वांट और रीजनिंग वीक होने पर आपको इंग्लिश, देन ESI एज वेल एज योर ARD, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको स्ट्रेंथन करके आप अपने मेंस तक की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ के अंदर ये 3 आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू गेन द स्कोर. इफ वी टॉक अबाउट इट, इट कैन गो अप टू 129 बिकॉज इनके प्रीवियस ईयर्स के अंदर 129 तक भी गया है. तो अगर आप 129 तक का स्कोर करने का सोच रहे हैं तो आपको अपर एज इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर मिल जाती है तो वो आपके लिए मेंस की तैयारी में भी और हेल्प कर देता है. सो दीज वर द कट ऑफ्स विच वर अवेलेबल फॉर ऑल द पोस्ट इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड इन 2020, दैट इज लास्ट ईयर जब उन्होंने ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है. So keeping the fingers crossed, this year also they can definitely do that because अभी RBI ने अपने पेपर का एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो डेफिनेटली एक अच्छा लेवल बना दिया है. It wasn't something easy, it was moderate to high level examination when they conducted the exam for the phase 1. So this is what you can look forward to. जब आप एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो अपने फेज 1 की तैयारी को बहुत सॉर्टेड वे से और समय से पहले शुरू करेंगे, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली आपको ही होगा. So this can be the overall scenario. We'll be meeting soon जब मैं आपसे बात करूंगी इसके previous year cut off analysis की. Till then, prepare well for the examination, stay safe, and at the same time, you can definitely participate in the combined scholarship test which is being conducted by Abipedia on 10th of May 2021. So go ahead, invest your time in something good, and at the same time, you can still have and avail the scholarships just by investing 1 hour. All the very best, guys. Thank you.